Yes, students, open exercise 1.3. Yesterday we were discussing question number 5, the questions related to the distributive property. Let's continue with that. Exercise 1.3, question number 5. Now I will be taking, first of all, we did A part. Now I'm going to take the B part. Look here. 8 into 53 into minus 125, right? Now it is written find the product using suitable property. It is not written that find the product using distributive property. So here we know, we have done the question that we can use the distributive property where we are having two numbers या फिर two terms, जैसे कल मैंने आपको समझाया था. Here what we are having, here we are having three numbers which are getting multiplied to each other. What we are going to do in this sum, we are going to use the property of rearrangement. We are going to use the property of rearrangement. It means we will multiply, we will write 8 into minus 125 into 53. रीअरेंजमेंट और बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मींस दो नंबर्स को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हम. वी हैव डन और यू राइट हियर रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, अब देखो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5 are 40, 8 is 16, 1000. What we get 1000 and one minus sign we are having, so it will be minus 1000 multiplied by 53, which will be what? 1000 multiplied by 53 is 53,000 with which sign? Minus sign. With sign? Minus. Right? So please note down. Now next sum. I will be doing here. By that time अगर किसी ने नोट नहीं किया वो वाला सम आप कर सकते हो. 15 into minus 25, C part. 15 into minus 25 into minus 4 into minus 10. Now see बच्चे, here again we can see four numbers are getting multiplied with each other. No addition. So what we are going to do? Again we are going to use the rearrangement property. रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाला नंबर है, वैसे तो हम फर्स्ट वाले को फोर्थ के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थर्ड के साथ भी, बट यू मेक योर हैबिट व्हाट एवर नंबर यू गेट, आप फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ लिख दो. ये आपने पहले शो करना है. इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द नंबर यू हैव टू शो. 15 into minus 4 multiply minus 25 multiply by minus 10. माइनस 4 को पहले लिख दिया, माइनस 25 को पोजीशन चेंज कर दी. अब पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. पोजीशन चेंज करने के बाद क्या किया? पहले इसको इसके साथ करना था, इसके साथ लिख दिया. अब 15 into minus 4 minus 60 multiply by minus minus plus 25 into 10 is 250. Right? Students, please come in the class on time. After every 1 minute I have to admit a few students. So those who are coming late, जिनको मैंने admit कर दिया है, please come in the class sharp at 8:30. आराम से नहीं आना है कि हाँ चलो मन किया था, मैंने एडमिट नहीं करना फिर आप कल से आपको. Then you will get absent और जो लॉस होगा वो अलग है. राइट बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, यहाँ एक माइनस था तो माइनस आ गया. अब क्या करेंगे? 250 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी विल गेट?
100, 150, 15,000, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया 150, साथ में दो जीरोस, and we will get our answer in negative because we are having one minus sign in our product. So please note down. Again you write here rearrangement property. Whenever the question comes that solve the question using property, that time bache you have to write the property which you are using. Fine. D part minus 41 into 102. Now see how to do this question. 102 here we are going to use the distributive property. We are going to distribute 102. 102 का मतलब क्या है? 102 is what? 100 plus 2. So can we write minus 41 into 100 plus 2? What we have done? We have distributed. ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? कल करवाया था ब्रैकेट में दो नंबर ऐड हो रहे हैं, बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. इट मींस दिस नंबर विल गेट मल्टीप्लाई विद 100 आल्सो एंड दिस minus 41 will get multiplied with this 2 also. Using distributive property, जहां आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां आपने लिखना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा? अब आगे देखो जी, minus 41 into 100, minus 41 into 100, फिर क्या है? ये वाला प्लस ब्रैकेट minus 41 into 2. I hope the step is clear. Minus 41 into 100, फिर ये ब्रैकेट वाला प्लस, then minus 41 multiply by 2. Now let us solve. Minus 40 100 plus minus 82. 41 into 2 is 82. क्योंकि दो साइन जो होते हैं वो हम कभी इकट्ठे नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट डालते हैं. नाउ minus 40 100 प्लस इंटू माइनस minus 82. अब दोनों नंबर नेगेटिव है, ऐड होंगे, व्हाट वी विल गेट? minus 4182. minus 4182 आंसर. ये लिख लो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मैं रब करने लगी हूँ. Now see E part. Now E part is what? देखो बेटा, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इज वन टर्म, देन पॉजिटिव. ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इज दी अनदर टर्म. So again we are having here two terms. So when such type of question comes, what we have to do? We have to see which number is same in both the terms. Now which number is same? Here we are having 625. Here we are having minus 625. तो बेटा इधर देखो, अगर आपके पास ऐसे नंबर हो minus 3 into 12, it is equal to minus 36. minus 3 into 12 को आप लिख सकते हो 3 into minus 12. मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब 3 और 12 और माइनस साइन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. So if you have minus 3 into 12, then you can shift the negative sign of 3 with 12 because we will get the same answer. Minus 36. Minus 36. So
What we will be doing in our sum? हमें पता है ये 625 है, दो तरीके हैं, या तो इस माइनस को इसके साथ शिफ्ट कर दो, या ये माइनस है इसको माइनस 65 के साथ कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। What I will do, I will shift this minus with this 625, उससे हमारा ब्रैकेट में माइनस नहीं आएगा। माइनस 625 इंटू 35 प्लस ये एवरेज। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, I have just shifted the negative sign which was with minus 35, which was with 35, उसको मैंने किसके साथ लिख दिया, माइनस उसको 625 के साथ लिख दिया और वो बन गया नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, again this is one term and this is the another, right? Control up our class. Now which number is same? Minus 625, दोनों में सेम है ना, राइट? So what we will do, we will take minus 625 outside, इसको बाहर निकाल लिया minus 625, then what we are left with, इस टर्म में से ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 35, ठीक है, और इस टर्म में से भी माइनस 625 बाहर आ, मीन्स ये दोनों का एक बनाकर हमने बाहर निकाल लिया। कॉमन लेने का मतलब जो चीज दोनों में है उसको टुगेदर कलेक्टिवली वी हैव टेकन आउटसाइड। सो व्हेन माइनस 625 इज टेकन कॉमन फ्रॉम दिस आल्सो, व्हाट वी आर लेफ्ट इन दिस टर्म, 65, ये प्लस फिर ये 65, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाहर चला गया, फाइन। minus 625, 65 plus 35 is what? 100. So our answer is minus 62500. यहाँ पर आप लिखेंगे using distributive property. Please note down. आप खुद करोगे, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 को 2 से, फिर उसको सॉल्व करोगे आगे। और यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओनली एफ पार्ट इज नॉट होमवर्क, अदर पार्ट्स आर आल्सो होमवर्क दैट आई विल सेंड यू, वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पार्ट्स होमवर्क हैं, ठीक है जी। minus 17 into minus 29. Now look here bete, minus 17 into minus 29. Now here we are having two numbers. अब टू नंबर्स हैं और प्रॉपर्टी लगानी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस माइनस एंड माइनस, टू माइनस आर गेटिंग मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गए, हमने माइनस हटा देना, हम अपने सम को लिखेंगे 17 इंटू 29, माइनस हटा दिया, क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, फाइन। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने पहले अपने सम में किया था, 102 को क्या लिख दिया था, 100 प्लस 2। जैसे मान लो आपके पास सपोज नंबर हो 98, अब 98 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 2, और 98 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 8 ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है, दिस यू हैव डन इन योर 6th क्लास ऑल्सो, राइट। ये जरूरी नहीं है कि हमने माइनस में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी। 29 को आप 20 प्लस 9 भी कर सकते हो, 30 माइनस 1 भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, फाइन। सो नाउ 17 will get multiplied with this 30, then minus 17 will get multiplied with 1 also. $510
minus 17. Answer is 493. Now beta see the H part. Minus 57 into minus 19. One term. Plus 57. अब 57 का मतलब क्या है? 57 का मतलब है इस 57 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. अगर 57 के साथ कोई मल्टीप्लाई शो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? 57 is getting multiplied with 1. हम क्या करेंगे? ये एक टर्म है. This is one term. दो नंबर्स नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. We will write 57 into 19. Minus sign we will remove as minus into minus will become plus. Plus इस 57 को हम लिख सकते हैं 57 into 1. 57 into 1. 2 को लिख सकते हैं 2 into 1. 5 को 5 into 1. Similarly 57 को लिख सकते हैं 57 into 1. Now this sum becomes very easy. This is one term and this is the another term. What is common? 57. 57 is common. What we are left with? What we are left in the first term? 19. Then plus. और इसमें 1 क्यों लिखा है? कि कई बार क्या करते हैं बच्चे 57 कॉमन ले लेते हैं और फिर क्या लिख देते हैं 0. 0 नहीं है. 57 का मतलब है 57 1 से मल्टीप्लाई होकर 57 बनता है. अगर आप 0 लिख दोगे फिर वो तो 0 बन जाएगी. 57 तो रहा ही नहीं. ये ध्यान रखना है. प्लस 1. इसलिए आप in order to avoid the mistake write 57 as 57 multiplied by 1. So now 57 into 20. Answer is 1140. Yes, Pranav. एक्सक्यूज मी मैम, हम 57 into 10 plus 57 into 10 लिख सकते हैं? नहीं करना. कैसे? मैम 57 into 10 plus 57 into 10. 10 कहाँ से आया? मैम वो 57 में 20 मल्टीप्लाई हुआ. इसको 10 plus 9. यस मैम. नहीं करना. बस उससे सब मुश्किल बनता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. नहीं करना. आपको तो मैंने सिंपल तरीके से सिंपल वे में करवाया है, तो आपने सबको कॉम्प्लिकेटेड जरूरी करना है. सिंपल हमने माइनस में हटाया, 57 कॉमन किया, इंक्रीज गेट आवर आंसर. व्हाई यू वांट टू गो इन द कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स? उसको मोर आपने ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत ही क्या है? ऐसे कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते. जब मैम ने आपको इजी तरीके से करवा दिया तो मुश्किल तरीके से करने की जरूरत नहीं है कोई. ठीक है बेटा? ओके मैम. ओके मैम. नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 6. 6th क्वेश्चन देखो. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? What is the question? कहते हैं एक freezing process है. ठीक है, कोई freezing process है, वहां पर the room temperature, वो process क्या चाहता है? that the room temperature be lowered. हर एक घंटे में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 40. जैसे मान लो ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है, ये अभी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. व्हाट आई वांट, आई विल सेट द प्रोसेस इन सच अ वे कि हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाए. मीन्स अगर अभी 40 है तो एक घंटे के बाद 35, दूसरे घंटे के बाद 30, 3 घंटे के बाद 25, 4 घंटे के बाद 20 एंड सो ऑन.
We have to tell that if the starting temperature is 40 degrees Celsius, what will be the temperature after 10 hours if it is decreasing at the rate of 5 degrees Celsius every hour? समझ आ गया क्वेश्चन? अभी टेम्परेचर है 40, ये डिक्रीज होता जा रहा है। 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा अगर हर एक घंटे में टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री। ठीक है, तो फॉर दिस वी विल राइट डाउन temperature decrease in 1 hour 5 degrees Celsius. Temperature decrease in 10 hours 5 into 10 50 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, द फाइनल टेम्परेचर। इधर देखो 40 डिग्री था, डिक्रीज मतलब कम होना। टोटल टेम्परेचर 10 घंटे में कितना डिक्रीज हुआ? 50। सो व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स? 40 माइनस 50, ये कितना है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? 50 माइनस 40 इज 10 बट नेगेटिव। सो इसका मतलब 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। फाइन, नोट डाउन प्लीज। Now beta I need to rub this question also. ठीक है, अगला क्वेश्चन करवाने के लिए स्टेटमेंट ज्यादा है, इसलिए नोट डाउन। Arjun, take the screenshot of the attendance. Fine. And who is taking the screenshot of the board? Arjun, आप लेते हो? Please raise the hand who takes the screenshot of the question which I am doing on the board. And beta, I sent you the message yesterday that you have to arrange your name. You have to write your roll number also in front of your name. जब रोल नंबर लिखते हैं ना तो जो आपकी अटेंडेंस है ना जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में आ जाती है नंबर वाइज, then it gets easy for us to take the attendance. So everyone will today rename yourself with your name and roll number, name and class. Okay? Arjun, raise your hand. Come back to the question. I'll talk to you later. 7 question देखो बेटा. In a class test containing 10 questions, there is a test, class test. कितने questions हैं? 10 questions. 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer. इसका मतलब अगर आपका आंसर करेक्ट है कितने मार्क्स मिलते हैं? 5। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है कितने मार्क्स मिलते हैं? -2। या फिर हम कह सकते हैं कितने मार्क्स कट होते हैं? नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 2 मार्क्स गेट डिडक्टेड। एंड टोटल 10 क्वेश्चन यू गेट 0। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो ना तो उसके ऑप्शन के मार्क्स मिलेंगे ना तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट, Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is this score? तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को लिखिए marks. Please write down marks given for 1 correct answer is 5. Marks deducted for 1 incorrect answer is 2.
अगर डिडक्टेड दिख रही है ना, मार्क्स डिडक्टेड कितने हैं 2। अगर दोनों एक ही बात है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन इनकरेक्ट इज -2 और मार्क्स डिडक्टेड फॉर वन इनकरेक्ट आंसर 2, दोनों एक ही बात है। मैं माइनस इसलिए लिखती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि माइनस माइनस करके कुछ प्लस कर देते हैं, इसलिए हमें जरूरत नहीं है देखेंगे, यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब फर्स्ट पार्ट के केस में किसका है ये फर्स्ट पार्ट, मोहन का। फर्स्ट पार्ट इज फॉर मोहन। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट। तो मोहन की बात कर रहे हैं, मार्क्स मोहन got 4 correct answers। अगर मोहन के 4 आंसर सही हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, एक सही के लिए 5, 4 सही के लिए 4 5 20। So Mohan got 20 marks for the 4 correct answers and marks deducted for 6 incorrect answers। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 12, 6 into 2 12 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब 20 मार्क्स उसको मिले क्योंकि उसके आंसर सही है, 12 मार्क्स बेटा उसके डिडक्ट हो गए, तो टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज 20 minus 12 8। अब माइनस साइन यहाँ क्यों नहीं किया, कई बार क्या करते हैं बच्चे, वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस सेशन 6 into -2 -12, फिर 20 माइनस माइनस 12 करके ये नहीं पता चलता कि माइनस 2 बार नहीं लगाना, इसलिए हम माइनस साइन को लिखेंगे, जरूरत नहीं है, हमने अवॉर्डेड की बजाय लिखी है डिडक्टिव। सो नोट डाउन प्लीज क्विकली। फोर करेक्ट आंसर्स थे तो 20, 6 इनकरेक्ट आंसर्स है तो 12 नंबर उसको कट गए, तो अब उसका टोटल स्कोर कितना है, जितने उसको मिले थे उसमें से जितने कट गए उसको माइनस कर दिया, so 20 minus 12 is 8। right, now come to the second part। second part क्या है, Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers, what is her score। तो रेशमा की बात करेंगे, marks Reshma got for how many correct answer, 5। marks Reshma got for 5 correct answer is 5 into 5 25 और incorrect कितनी है 5। marks deducted for 5 incorrect answer, 5 into 2 10। एक गलत के लिए 2 नंबर कटते हैं, 5 गलत के लिए कितने कटेंगे 10। so total score of Reshma is 25 minus 10, that is 15। okay, note कर लो please।
and 5 incorrect answers. Out of 7 questions she attempts. अब उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 7. 2 उसमें से सही हो गए, 5 गलत हो गए. What is her score? So third part is for Hina. So same way we have to proceed. Marks. अब जो 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए ना उसको कुछ करना ही नहीं है इसमें. नहीं किए तो नहीं किए. Marks Hina got for 2 correct answers. 5 into 2, 10. And marks deducted for 5 incorrect answers. उसको उसने 2 आंसर सही दिए, उसको 10 मार्क्स मिले. 5 आंसर गलत हुए तो 5 into 2, 10 मार्क्स उसको मिले थे, वो उसमें चले गए. सो टोटल स्कोर ऑफ हिना जितने मिले उसमें से जितने कटे वो माइनस करेंगे. सो द स्कोर ऑफ हिना इज 0. Score of Hina is 0. Any doubt to anyone? Yes, beta. 1 minute is left for the class to get over. So I'm not going to start with the 8th question. ठीक है? Question लंबा है. We will start tomorrow. Then we have division. Okay. So we will try to finish with our chapter from the book tomorrow. चलो अभी बेटा 1 minute is there. तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो लंबा है थोड़ा सा. I'll take 2 minutes. I'll discuss exercise 1.4 first question ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं. ठीक है? -30 divided by 10, A part. Then beta E part. Nothing, just wait. -30 over 10. 0, 0 get cancelled. Answer is -3. So is it E part? 13 divided by. We know we have to solve first of all the big bracket. Bracket में क्या है? -2 plus 1. 13 divided by. -2 plus 1 means what? ये -3 plus 2 minus 1, 1. बट कौन सा साइन? माइनस का साइन. ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? 13 over -1. अगर 13 over 1 होता तो आंसर क्या लिखते? 13. अब 13 over -1 है, so what will be the answer? माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, आंसर will be -13. Okay. 0 divided by 12. If 0 is in the numerator, the answer is always 0. ठीक है? तो इस क्वेश्चन में से भी I will give you 2-3 parts homework. I will write and send you the book. तो एक तो राइट एंड फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है? All right, now I'm going to end the class. Take care. Homework I will send you.